Hello, dear students. Good morning to all of you. Unit first, chapter number first. I think these chapters, with their exercises, you have completed already in your previous classes. Now we will teach and start the computer networking chapter number 6 है ना. Then chapter first, computer system. Second आपका input and output devices. Third, types of software. And fourth, operating system. Fifth, working with an operating system. So these chapters has completed. Now we will start the chapter 6, computer networking. Okay. कंप्यूटर नेटवर्किंग. पहले बात करते हैं कि नेटवर्क. व्हाट इज द नेटवर्क? तो ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंजिंग फाइल्स और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. दैट्स नोन एज द नेटवर्क, है ना. when two or more computers are connected with each other, they together form a computer network. These linked computers share information with each other over the network. Okay. अगर बात करते हैं कि नेट इंफॉर्मेशन, अभी एक वर्ड आया यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, है ना. देन व्हाट इज इंफॉर्मेशन? फर्स्ट वी हैव टू नो दैट द डाटा इज ए रॉ मटेरियल कलेक्शन, है ना. रॉ मटेरियल, सपोज दैट दिस इज द नेम RMA. If we arrange data in a sequential form or arrange in a sequential manner RAM, then it gives a suitable meaning. It's a means RAM. It's indicate a name, a person of name, that it called the information. Okay, the data is a raw material, and if arrange the data in a sequential form, and it informs or it indicates any valuable information, that is known as the information. Okay, so this is the difference between the data and the information. Now we talk the components, है ना. कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट. सेकेंड हेडिंग्स आपकी है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस इट्स मीन द एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक एज द प्रिंटर, मॉडेम, हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना. डाटा फाइल्स, तो दीज शेयर्ड रिसोर्सेज कैन बी डाटा फाइल्स, एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक दैट द प्रिंटर, मॉडेम एक्सेट्रा, है ना. These are the components of computer networks, friends. Next, student, need of networking. Why we need the computer network? The need of computer, if we talk, then the computer network help user on the network to share the resources and in communication. File sharing, in hardware sharing, if we talk about the hardware sharing, the users can share the devices such as the printer, scanner, CD-ROM, hard disk, etc. वगैरह. ठीक है. तो वाई वी नीड द कंप्यूटर नेटवर्क? वी कैन शेयर द रिसोर्सेज. ओके, इन कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग. इन हार्डवेयर शेयरिंग, यूजर्स कैन शेयर द डिवाइसेज सच एज द प्रिंटर, स्कैनर, लाइक एज. ओके, दिस द 3 पॉइंट्स इज द हियर. फर्स्ट, सेंडर क्या है? ए सेंडर इज ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मोबाइल फोन और टैबलेट दैट सेंड द डाटा थ्रू द वेब ब्राउज़र, है ना. सो सेंडर इज़ ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मोबाइल फोन्स, यानी कि आप यूज़र्स के बारे में बात कर सकते हैं ना. तो यूज़र्स कैन बी सेंड, है ना, ए डाटा टू अनदर सिस्टम और अनदर नेटवर्क. देखिए, सिस्टम, द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द नोड, है ना. सेकेंड पॉइंट इज दैट कम्युनिकेशन मीडियम. तो इज़ द फिजिकल पैथ, यानी कि कम्युनिकेशन वे जो है आपका, दिस इज द फिजिकल पैथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, फर्स्ट पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फर्स्ट नोड टू सेकेंड नोड. वी कैन से द नोड, यानी कि सिस्टम को क्या बोलते हैं? नोड. ठीक है. इन द फिजिकल पैथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए जो मैसेज सेंड होता है वाई द कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू. ओके. Receiver which receive the message. A receiver is a device. A receiver is a device that receive the data message. It can also be a computer, workstation, tablet or mobile phones, है ना. So the second point from by which the first point by which the we send any data or information or message, है ना, to the second point. The second point is called the receiver. Okay. The advantage of computer, if we talk the advantage of computer, what is the advantage of computer? We can share the hardware, you know, we can share software applications and efficiency of hardware and software resources. If we talk about the hardware sharing,
तो हार्डवेयर शेयरिंग आपका, इन हार्डवेयर शेयरिंग यूजर्स कैन शेयर द डिवाइसेस सच एज द प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर थ्रू शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग में आपका आता है कि कंप्यूटर इन ए नेटवर्क कैन यूज द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द सर्वर। तो दिस टेक्निक सेव कॉस्ट एज वेल एज टाइम in a software can be installed on the main server rather than installing it on every computer individually। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर शेयरिंग। इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका रिड्यूसेस रिडंडेंसी। इफ यू टॉक अबाउट द रिडंडेंसी, व्हाट इज द रिडंडेंसी स्टूडेंट्स? रिडंडेंसी यानी कि इट्स नोन एज द डुप्लीकेसी ऑफ फाइल, known as the duplicacy of file। if we have, देखिए होता क्या है, if we have a file data in a folder, if we saved a file or data in a folder and we move or copy again it into that folder, okay, then फिर से मैंने अगर उस फोल्डर में उसी डाटा या उसको कॉपी करना चाहा, ठीक है, we have, if we want to move or copy again it into that folder, देन दिस आल्सो रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ सेम डाटा, है ना। सेम डाटा को क्या करता है, वो फिर से आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज जनरेट करेगा कि आपके पास ये ऑलरेडी वहाँ पे सेव है ना। इफ़ वी हैव ऑलरेडी सेव्ड एनी डाटा इन ए फोल्डर, तो रिडंडेंसी होता है डुप्लीकेसी ऑफ फाइल, तो इट रिड्यूस द डुप्लीकेसी ऑफ फाइल, तो रिड्यूस रिडंडेंसी इज द फोर्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेव्स पेपर एंड टाइम। थर्ड, आपको पता है सेव्स पेपर एंड टाइम। इंटरनेट शेयरिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग इंटरनेट फैसिलिटी ऑन एन इंडिविजुअल नेटवर्क। एक कॉर्पोरेट इंटरनेट कनेक्शन इज पावरफुल इनफ टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। अगर हम बात करें नेटवर्क, तो द बिगेस्ट नेटवर्क जो है ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरनेट, है ना। इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। First we have to know internet is the network of the networks। it is the biggest network of the world across the world। होता क्या है दोस्तों कि it is the best example of WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो आपके बताए जाएंगे अभी आपको, लैन, मैन, वैन, जैसा कि नीचे दिया है टाइप्स ऑफ ए नेटवर्क। दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वैसे तो इसके 5-6 होते हैं, जैसे कि वैन है, WAN, ऐसे होता है वी लैन होता है, सॉरी डब्ल्यू लैन होता है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक तो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें आपको 4 पार्ट्स अवेलेबल हैं। दीज आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स, कितने, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो 2 और 2 मोर कंप्यूटर्स यानी होते कितने, 2 से 1000 यानी 1000 तक, ठीक है, कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन ए स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया, आप कितना स्मॉल एरिया है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि लाइक ए रूम, आपके एक रूम की तरह, ऑफिस बिल्डिंग और एक कैंपस की तरह हो सकता है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ लैंड कैन बी 10 किलोमीटर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है आपका कि मैक्सिमम रेंज ऑफ लैंड कितना हो सकता है, इट मे बी 10 किलोमीटर्स के। द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ए लैंड वेरीज फ्रॉम 2 to 1000। मैंने आपको बताया था मोर देन 2 एंड टिल टू द 1000। द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड थ्रू द लैन। तो द सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी आप दोनों को शेयर करना चाहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, तो शेयर थ्रू द लैन यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क के विद इन आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज मच लार्जर दैन ए लैन, या थोड़ा सा इसका इंक्रीज होता है एरिया लैन के थ्रू, ठीक है। तो लैन सेटअप से थोड़ा सा बड़ा होता है एंड इज स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी, यानी कि ये एक लैन का क्या था, एक रूम या ऑफिस के थ्रू या कैंपस के विद इन होता था। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये किसी में एक अक्रॉस द सिटी यानी कि एक ओवरऑल सिटी पर वर्क करता है। सिंस इट कैन कवर एन एंटायर सिटी इट इज़ कॉल्ड मैन, ठीक है दोस्तों। तो ये लैन से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, मोर देन द लैन, एंड इट कहाँ गया, इट इज़ कॉल्ड मैन अक्रॉस द सिटी, यानी कि इट कैन कवर एन एंटायर सिटी, ये पूरे सिटी को कवर कर सकता है। और लाइन क्या था, ये किसी ऑफिस बिल्डिंग या कैंपस के थ्रू होता था, है ना। बात करते हैं द मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन, ठीक है, मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है आपका, इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज इसकी है 50 किलोमीटर्स, यानी कि एक सिटी नियर अबाउट 50 किलोमीटर्स के अंदर अगर है तो वो मैन के थ्रू उसमें सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से
ऐड किए जा सकते हैं, यानी कनेक्ट किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन पैथ यानी कि फिजिकल पैथ ऑफ कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है उसके बीच में। द वाइड एरिया नेटवर्क, अभी मैंने आपको बताया कि द इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज इट क्रॉस ओवर द वर्ल्ड, है ना, it connected across over the world. Wide area network comes into the picture when we have two or more computers located at far away places linked by the communication facilities like telecommunication or satellite signals. Satellite signals अब एक सिटी के लिए तो अवेलेबल है नहीं ना, ये सारे अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा इंटरनेट हो जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन नेटवर्क इज़ आवर डेली लाइफ इज़ द इंटरनेट। देखिए बहुत साफ शब्दों में दिया गया है कि इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैंड विच इज़ द जनरली यूज्ड इन हाउसेस, स्कूल्स, बैंक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। यानी कि किसी स्कूल्स का जैसे कि कोई ऑफिस वर्क है, अगर आपका यहाँ से दिल्ली ऑफिस में कोई कनेक्टिविटी लगानी है, आपको किसी कम्युनिकेशन पथ से कोई भी कम्युनिकेशन करना है आपको, तो अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ से किसी अदर सिटी के लिए बात करते हैं, जैसे कि अपना कानपुर है, कन्नौज है और दिल्ली है, ठीक है, इलाहाबाद है, यहाँ के किसी कम्युनिकेशन से आप कनेक्ट होना चाहते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, दैट वी कैन यूज़ द वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क एंड इट्स द एग्जाम्पल ऑफ द वैन। फोर्थ है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि पैन जो है ये पर्सनल हो गया, ठीक है। पर्सनल यानी कि एक सिस्टम, एक यूज़र्स के लिए हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअली पर्सन, ठीक, इट इज़ मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअली पर्सन, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ए डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपका जो भी सिस्टम है, आप जिस सिस्टम के यूज़र हैं आप उसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इसको रन करा सकते हैं। ए मोबाइल फ़ोन्स, या आप मोबाइल फ़ोन्स को चला रहे हैं, एंड फॉर ए हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस सच एज ए PDA और ए स्मार्टफोन या टैबलेट या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द अंडर प्रोसेसिंग ऑफ पैन के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं नेटवर्क। देखिए नेटवर्क कंपोनेंट में आपका आ गया है सर्वर। तो ए सर्वर इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जहाँ से हम लोग अपलोडिंग करते हैं, यानी कि जो भी यूजर्स किसी डाटा को सर्च कर रहा है, इफ़ यूजर्स कैन सर्च ए डाटा देन द अपलोडिंग ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर, जहाँ से अपलोड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सर्वर के। देखते हैं कि द रिजल्ट आर द सेंट बैक द सर्वर टू योर कंप्यूटर, यानी कि आपने कुछ भी सर्च किया, यूजर्स ने सर्च किया कुछ, तो जो बैक पॉइंट यानी कि बैक रिजल्ट आपका आ रहा है तो वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द सर्वर। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव सर्वर्स विद dedicated functionality such as web server, print server and database server. These are the types of server. Okay, client is the client is known as the users, है ना। आप अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, दैट्स मीन यू आर ए क्लाइंट, यानी कि आप किसी डाटा को पर्टिकुलरली सर्च कर रहे हैं, दैट्स मीन यू सर्च दैट डाटा, है ना, यू आर सर्चिंग ऑन दिस टाइम, देन यू विल बी client. So a client is a computer system users which uses a network to access a remote service from the server. यानी कि सर्वर से आप अगर किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, अपलोडिंग करना चाहते हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, दैट्स मीन द यू आर यूज़र, है ना, ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम। तो उस कंप्यूटर सिस्टम को जहाँ से विच यूजेज ए नेटवर्क टू एक्सेस ए रिमोट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर, इट कैन एक्सेस all the applications or information from the main server. A client is also known as a node. दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स कि नोड्स में क्या होता है, नोड जो सिस्टम है आपका उसको आप नोड्स पे बोल सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को नोड बोल सकते हैं, पॉइंट्स बोल सकते हैं। और जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप अगर सिस्टम को रन कर रहे हैं, दैट्स मीन यू आर ए यूज़र और क्लाइंट के। बात करते हैं NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। NIC क्या होता है, तो NIC आइडेंटिफाइज एवरी सिग्नल नोड इन ए नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिक फिजिकल एड्रेस, है ना। एक IP एड्रेस होता है जैसे सिस्टम्स का, ऐसे ही एक फिजिकल एड्रेस को NIC रखता है, और जो करता क्या है, एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करता है। इट कनेक्टेड इनटू द फर्स्ट नोड टू सेकेंड नोड। तो दिस एड्रेस इज स्टोर्ड ऑन ए चिप, एक इसमें स्टोर्ड होता है, एक चिप में स्टोर्ड होता है, विच इज़ माउंटेड ऑन द कार्ड के। 1 मिनट। विच फैसिलिटीज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ये क्या करता है, एक ऐसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है विच फैसिलिटीज द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स ओवर नेटवर्क। एक नेटवर्क के थ्रू किसी दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन पथ को जनरेट करता है बाय द NIC, है ना। और करता क्या, एवरी सिग्नल नोड इन ए नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू इट, ओके।
मोड ऑफ कनेक्शन की बात करते हैं तो मोड ऑफ कनेक्शन के लिए आप मॉडम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इट्स वर्क मतलब ये कन्वर्ट्स करता है, तो इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल ऑफ ए कंप्यूटर इनटू ए एनालॉग सिग्नल्स, एंड एनालॉग सिग्नल्स को किस में करता है, डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है। एट द डेस्टिनेशन द रिसीविंग मॉडम फर्दर कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर हम हब की बात करते हैं, व्हाट इज द हब, तो hub is a networking device that is used to connect multiple computers and computing devices डायरेक्टली टू द नेटवर्क बाई यूजिंग केबल्स, यानी कि आप किसी केबल्स के थ्रू या डायरेक्टली किसी भी कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हब एक ऐसा वे है जिससे कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है ना। हब इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी बहुत सारे कंप्यूटर, सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ईच अदर एट ए टाइम इट्स बाई द हब के। स्विच की बात करते हैं। स्विच क्या है, 1 मिनट। स्विच क्या है, स्विच इज कंटेन्स मैनी पोर्ट्स ऑफ टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट, यानी कि कई सारे नेटवर्क सेगमेंट्स को अगर कनेक्ट करना है बीच में तो दैट्स वी विल यूज़ द स्विच, है ना। दे आर सिमिलर टू द हब्स, यानी कि हब जिस तरीके से कई सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट रखता था ना, उसी तरीके से क्या होता है, दे आर सिमिलर टू हब्स बट ऑफर ग्रेटर परफॉर्मेंस when a network contains a large number of devices, है ना। switches are needed instead of hub to make sure the communication between devices do not slow down, यानी कि बाय द हब अगर करते हैं तो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है प्रोसेस वो थोड़ा स्लो हो सकती है, बट इफ़ वी कनेक्टेड बाय द स्विचेस, है ना, ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करता है और इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिपीटर दोस्तों। रिपीटर स्टूडेंट्स क्या है कि रिपीटर इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस यूज टू रीजनरेट ए सिग्नल, है ना। इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, क्लीन्स देम एंड रीट्रांसमिट देम। होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, तो रिपीटर रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट देम, है, रीट्रांसमिट देम, इसको रीचेंज करनी, इसीलिए इट्स नेम इज द रिपीटर, ना, रिपीटर यानी कि फिर से रिपीट करता है। राउटर क्या है, राउटर इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क सच एज टू लैन्स और ए लैन एंड ए वैन, यानी कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, दैट्स मीन द वर्क ऑफ राउटर, है ना। सच एज टू लैन्स, या टू लैन्स के थ्रू या टू वैन्स को। इट प्लेज अ विटल रोल in controlling the traffic and the keeping the network efficient. It chooses the best route for the data packets to be transmitted at the receiver's end, यानी कि डाटा पैकेट्स, देखो डाटा किस में चलता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, 0 to 1 डिजिट कोडेड में चलता है ना डाटा, तो इसी तरीके से पैकेजेस, इसको पैकेट्स में बोलते हैं कि डाटा पैकेट्स में चल रहा है। तो डाटा पैकेट्स तो भी ये कम्युनिकेशन विद पे एक फिजिकल पैथ पे जो डाटा हमारा फ्लो होता है वो एक पैकेट्स में होता है। तो डाटा पैकेट्स टू बी ट्रांसमिटेड एट द रिसीवर्स एंड, यानी कि लास्ट एंड तक, लास्ट नोड तक, लास्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं उसको, तो वहाँ तक डाटा जो पैकेट्स में जा रहा है, तो द चूजेज द बेस्ट राउट फॉर द डाटा पैकेट्स, है ना। तो राउटर्स क्या करता है, बेस्ट राउट करता है। गेटवे का है, गेटवे इज ए नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स as an entrance to another network using different protocols, thereby giving us freedom and क्या है, convenience, है ना, convenience to enjoy, 1 minute, convenience to enjoy, क्या हो रहा है, convenience to enjoy online. It allow us to carry out various online activities such as sending emails, browsing through web pages, and buying things online, and more than. It is shared connection between a local area network and a larger system, that is WAN, यानी कि किसी लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक बिल्डिंग, ऑफिस या इस कैंपस के थ्रू है, एंड वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द सिटी, कहीं भी किसी दो नेटवर्क्स को अगर कनेक्ट कराना है, दैट इज़ द, क्या करते हैं, वाइंग थिंग्स ऑनलाइन, किसी भी थिंग्स को जो वाई करते हैं हम लोग, या ब्राउजिंग थ्रू द वेब पेजेस को थ्रू ब्राउज करना है, दैट्स इट्स, कहाँ गया, हाँ, गेटवे के थ्रू होता है, ठीक है। अभी करते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पैकेट कन्वर्टर, है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पैकेट कन्वर्टर, यानी कि गेटवे इज आल्सो नोन एज द पैकेट कन्वर्टर। ब्रिज क्या है, इट इज़ व्हाट इज ब्रिज, तो ए ब्रिज इज ए रिपीटर विद एड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट। देखो होता क्या है, रिपीटर की तरह वर्क करता है, बट ये इसमें एक फ़िल्टर डाटा के ऑप्शंस एक्स्ट्रा होता है ना। तो एड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग
द एड्रेसेस ऑफ सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस. इट इज़ यूज टू इंटरकनेक्टेड टू लैंस. किसके इंटरकनेक्ट करता है? टू लैंस वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन देम. दोनों के बीच में कैसा प्रोवाइड्स कराता है कम्युनिकेशन को. ठीक है, दो लैंस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स कराता है और एक फिल्टर्ड ऑप्शन को एक्स्ट्रा रखता है रिपीटर के थ्रू. बाकी जो है वर्क सिमिलर एज द रिपीटर के. इन नेक्स्ट क्लास वी विल टीच, कहाँ गया, ट्रांसमिशन मीडियम है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.